which is a popular tourist attraction locally as well as internationally. I'm coming, Wadi ul Jamal. The moment I entered the Kahan Naran Valley, उसी वक्त मुझे feeling आ गई थी कि this place will become one of my favorite tourist destinations. Surprisingly, as I entered this cave, it expands itself. कुछ तो बात है इस जगह की. हैरानी इस बात की होती है कि how this cave is still so well preserved. The dry fruit was available too, and in good stock. Such nice bags, greatly crafted and designed. आज हम आए हैं नारान, which is a popular tourist attraction locally as well as internationally. Not only I will explore Naran, but also I will explore the romantic story of a fairy and the prince. The moment I entered the Kahan Naran Valley, उसी वक्त मुझे feeling आ गई थी कि this place will become one of my favorite tourist destinations. Situated in KPK province, along the folds of River Gunhar, I had never witnessed a more calm, peaceful, and heaven-like natural beauty before, especially in Pakistan. Guys, as you can see, लोग rafting पे कर रहे हैं and they seem to have so much fun. लेकिन मुझे लग रहा है कि पानी शदीद ठंडा है. Hi! बाजी कोई शहद चाहिए? शहद लेने बाजी? वालेकुम. ये क्या चीज़ है? शहद है, शहद. कोई शहद चाहिए? हनी है. अच्छा. हाँ. ये तो नेचुरल मैंने पहले दफा और देखा. ये बी हाइव है ना? हाँ जी, ये छत है शहद का. अच्छा, ये तो बहुत ऑर्गेनिक. चेक करें ना बाजी, ये ताज़ा शहद है. ये भी है. This seems so interesting. जंगली शहद है, छोटी मट्टी के. ये तो बहुत स्वीट है. जी हाँ. And guys, the best thing about it, this is organic. It's pure. In the very first glance, I fell in love with Naran. Extremely hospitable locals and exceptionally soothing surroundings. What a combo, है ना? A perfect spot for the families to enjoy the views of beautiful goats and cows. Sporting activities like horse riding, trekking and rafting, Naran has it all. Guys, यहाँ पे मुझे एक फैमिली मिली है तो हम उनसे बात कर लेते हैं. आप लोग सिंध से आएंगे ना? जी जी बिल्कुल. सिंध के भी हम बिल्कुल एज से आए हैं, थर पारकर से. किधर से? थर पारकर से. थर पारकर का मतलब ये एरिया है कि वो इंडिया के बॉर्डर के करीब है. अच्छा. जी जी बिल्कुल. तो बहुत दूर है. जी हाँ, काफी दूर है बिल्कुल. वहाँ से लेके हम खुंजराब भी गए, मतलब एक मुल्क के बॉर्डर से लेके दूसरे. पहले खुंजराब के पास गए. एग्जैक्टली जी हाँ. फिर इधर आ गए. जी जी बिल्कुल. वापसी में हम इधर स्टे हमारा है 2-3 दिन. अच्छा. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये खुंजराब की साइड हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. मौसम काफ़ी प्लीजेंट है हमारे पास. वहाँ पे एरिया में इस वक्त जो हम फ़ोन पे रब्ता कर रहे हैं तो टेम्परेचर अराउंड 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड है. और इस मौसम में हमें यहाँ पे 18, 17, 16 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है. तो ऑब्वियसली इसलिए हम यहाँ पे ठहरे हैं, अपने काम काज छोड़ के यहाँ पे ठहरे हैं. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा. तो अब जो है ना, आगे क्या क्या प्लान्स हैं? आगे फिलहाल तो प्लान ये है कि इसी वापस एग्जैक्टली जाना है. जी हाँ, वो मजबूरी है. लेकिन ये कि फिलहाल हफ्ता 10 दिन हम यहाँ के मतलब नारान और उसके जो सराउंडिंग से मरी, हो सकता है सवात भी, ये 2-3 जो जगह हैं उनको हम एक्सप्लोर करें. Oh, and that iconic Jeep, the 90s-70s classic. The streets of Naran are incomplete without this one for sure.
usually hold my appetite for the longest periods, but River Gunhar के सामने बैठकर पकोड़ास enjoy करना, how could I miss that? और फिर हम निकल गए फेरी बादी उल जमाल से मिलने. Yes, Jil Saiful Muluk, we're coming. Guys, make sure that you wear your safety belt on. The track is extremely slippery and bumpy. This sure looks thrilling. Nature is wild. I've heard so much about this place. और खास तौर पर कहानी, which is about the fairy and the prince. After a pretty dangerous ride, मैं finally पहुंच गई हूँ Saiful Muluk, and you can see the view is definitely worth it. It's so magical. I feel like I'm in the heaven. So चलते, I'll show you around. I don't have any words. Speechless. This is heaven on earth. Guys, as we walk towards the lake, एक छोटी सी मार्केट आती है, तो यहाँ से गुजरना पड़ता है. चलते, let's go. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये बर्फ में रखा. ये this is like a Desi fridge. यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलते हैं. पकोड़े भी हैं और उधर चिप्स भी हैं. खाना शाना वगैरह है. छली भी है. थोड़ा देर बाद मैं ज़रूर खाऊंगी. जो भी स्नैक्स आप चाहिए होंगे यहाँ मिलते हैं. You just name it, they have it all. Guys, I think we're about to reach the lake. Oh, सामने है. Finally, let's go. The plains, the carpeted and exponentially placed mountains. Wow, such a beautiful place for such romantic tale. This is definitely a tourist hub. Families आए हुए हैं, and you can see people coming from different cities of Pakistan have reached here, and they're also enjoying the view. चारपाई हैं, they're sitting on top of them and enjoying this breathtaking view. और मैं व्यू एंजॉय करूंगी कुछ खाते हुए. अस्सलाम वालेकुम. मुझे एक शवारमा चाहिए. यही इसी तरह चिकन शॉर्मा. जी. Smells so good. भाईजान, किन मंथ्स में इधर आना चाहिए? किस मंथ में? हाँ जी, मतलब जो बेस्ट सीजन है. 3rd 4th मंथ में. मतलब मार्च और अप्रैल. मार्च अप्रैल. अच्छा, क्यों? क्योंकि मौसम अच्छा होता है उस टाइम, उस दौरान पे. अच्छा, और उसके अलावा ठंड होती है, यहाँ पे बर्फ होती है. अच्छा, सारी जगह कवर होती है. बर्फ पड़ती है? जी, यहाँ पे होती है बहुत ज्यादा. अभी भी सामने मलका पर्वत पे कल बर्फ पड़ी है. फ्रेश है ये सारी. अच्छा. ये मलका पर्वत है सामने पहाड़ पे. खूबसूरत खूबसूरत. चलिए, मुझे शवारमा देते हैं. बहुत शुक्रिया. गरम गरम. After a long, tiring journey, I was really hungry. Let's go and explore the folklore of Saiful Muluk.
इधर आने से पहले I did some research and I found out there's a story about this place जो locals कहते हैं. So we'll go and ask some local people about the story. अस्सलाम वालेकुम. आप यहाँ के हैं? यहाँ का रहने वाला अच्छा, झील के बारे में मैंने एक कहानी सुना, तो वो बता सकते हैं आप? बता सकता हूँ। एक शहजादा था मिस्र का, उसे जी एक दफ़ा ख्वाब आया। ख्वाब में उसने ये वाली झील को भी उसने देखा और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल, बहुत खूबसूरत परी थी और सब परियों की मलका और शहजादी थी। सुबह उठकर उसने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाया। वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह था। बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। नारी मतलब होता है आग वाली, नार से बनी होती है, इसलिए आदमजात को नज़र नहीं आती। शहजादे ने अपने वालिद को कहा कि मुझे परी मिले या न मिले तो मैं झील देखने ज़रूर जाऊंगा, मुझे इजाज़त दे दो। शहजादे को वहाँ से इजाज़त मिली अपने वालिद से। शहजादा वहाँ से निकल आए। आते आते रास्ते में से कोई अल्लाह वाला एक मिला, वली बुज़ुर्ग। उस वली बुज़ुर्ग का वहाँ रास्ते में मज़ार था। शहजादा वहाँ से गुजर कर आ रहा था, ये झील की तरफ झील ढूंढ रहा था। उस वली ने शहजादे से पूछा, ऐ शहजादे आप किस लिए यहाँ जंगल में घूम रहे हैं? उसने कहा कि मैं तो एक झील है वो झील देखने जा रहा हूँ। उस वली से जी फिर उसे एक सलेमानी टोपी मिली। टोपी मिलने के बाद उसके कब्जे में जिंद आ गई जन्नात भूत। उन जन्नाता शहजादे को मिस्र से उठाया और यहाँ ला कर उतारा ये झील पर। यहीं पर उसने झील देखी, झील की पहचान की। उसने कहा कि झील तो यही है जो मैंने ख्वाब में देखी है, मुझे परी जो है वो यहाँ कैसे मिल सकती है? जिन्होंने कहा कि उसके लिए चेला करें और इबादत करें। शहजादे ने 40 दिन चेला काटा, अल्लाह की इबादत की। 40वें दिन की बाद उसने दुआ मांगी। उसी दिन में कहते हैं कि वो परियां यहाँ नहाने के लिए आ रही हैं कोई काब से। वहाँ से यहाँ 7 सहेलियाँ आई हुई थी यहाँ नहाने के लिए। 8वीं जो थी वही बदर जमाल जो शहजादे ने ख्वाब में देखी थी। शहजादे ने जब उस परी को यहाँ नहाते हुए देखा अपनी सहेलियों के साथ, उसने उन जिनों को भेजा। जिन यहाँ पहुँचे खामोशी से उस परी की पारी यहाँ से उठाए। वो शहजादे सैफ को मिल गई, वो लेकर छुप के अपने कब्जे में। सब परियां दूसरी सहेलियां वो झील से यहाँ से वो बाहर आई हैं। उन्होंने अपने अपने पारी यहाँ से उठाए और पहन लिए। उसका नहीं मिला परी बदर जमाल का। दूसरी सहेली वो यहाँ से भाग गई कोई काफ की तरफ वापस। उन सहेलियों ने ये सोचा कि जैसे मलका का हाल हुआ ऐसे मारा भी होगा, कहीं मारे लिबास भी चोरी हो जाएंगे। वो तो चली गई अपने पर पहन कर वापस। बदर जमाल वो यहीं रहेगी अकेली, क्योंकि उसके पार नहीं है, वो उड़ नहीं सकती, वापस नहीं जा सकती। फिर शहजादा उसके सामने आए। जब परी और शहजादा दोनों यहाँ पे आमने सामने आ गए, परी ने शहजादे सैफ को कहा, क्या शहजादे मैं आपके साथ वादा करती हूँ, मैं इकरार करती हूँ कि मैं चले जाऊँगी ज़रूर, लेकिन आज मुझे इजाज़त दी जाए कि मेरे पार मुझे वापस दे दे। मैं एक देव की कैद में हूँ। अगर वो देव यहाँ पहुँच गया दोनों को ख़त्म कर देगा। उस देव का नाम था दिल सफ़ेद था, वो भी जिन था। उसने वहाँ सब परियों को बंद किया हुआ था, कोई काफ के अंदर कैद किया हुआ था, उसके कब्जे में थे। शहजादे ने नहीं मानी। उसने कहा कि मेरे साथ चलोगी, मैं पहले भी तुम्हारी तलाश में बड़ी मुसीबत काटी है और आपको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे साथ चलोगी। उसने सारी जी उस परी को लिबास नहीं दिया क्योंकि उसने भाग जाना था। उसने चादर पहनाई। परी और शहजादा दोनों इस नारान के तरफ चले गए, रवाना हो गए। इस नारान में उस वक़्त एक इंसानों की बादी नहीं थी, एक जंगल उजाड़ एरिया था। दूसरी सहेली को एक आफ पहुँची है। वहाँ जाकर देव सफ़ेद को बताया कि मलका बदर जमाल जी हमसे जुदा हो गई है झील में, कोई पता नहीं झील में डूब गई क्या हुआ। ये राज देव को नहीं बताया कि लिबास किसी ने चुरा ली है। देव वहाँ से तलाश के लिए ढूंढने के लिए निकला है। यहाँ कर पहुँचे, पानी जा रहा है ये नाला। उस वक्त ये पानी यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था, यहाँ एक पहाड़ी थी, ये झील बंद थी, बड़ी झील थी, झील ऊंची झील थी, ऊपर तकड़ी भरी हुई। फिर क्या हुआ कि देव ने यहाँ से अपनी एड़ी लगाकर इस पहाड़ को, ये झील को यहाँ से तोड़ा। देव ने इसलिए तोड़ा कि देव ने कहा कि शायद ये झील खाली हो जाएगी, तब ये परी का पता चल जाएगा। नीचे गिर गई हुआ, उसको मैं यहाँ से बाहर निकाली। जब उसने ये झील को तोड़ा, यहाँ से ये रेती इलाका था, इस नारान के अंदर तूफान गया, फ्लड। वहाँ जाकर जब नारान में पहुँचे, परी और शहजादी ने अल्लाह से दुआ मांगी। इस नारान के अंदर ज़मीन में एक पहाड़ बन गया। पहाड़ के अंदर एक सुरंग बन गया, गार, जिसके अंदर परी और शहजादा दोनों छुप के। दाईं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाईं साइड से भी। ये गार जो है नारान में अभी भी मौजूद है। सब लोग उस गार को भी देखते हैं, मशहूर गार है। वहाँ पे लाइट लेकर जाते हैं, उस गार के अंदर लाइट नहीं जलती, बुझ जाती है। देव सवेद जो था सरजी, जिस देव ने झील को तोड़ा था, वो भी देव परी को ढूंढा और परी की तलाश करता करता काफ़ी दूर तक चला गया, देव सही तक में। देव को वो परी नहीं मिली। देव सही आ रही है स्कर्दू साइड में। वहीं वो देव किसी पहाड़ के साथ
वहाँ जाकर वो देव पहाड़ बन गए। इसलिए पहाड़ बन गए कि उस बुजुर्ग ने उसके लिए वो दुआ की थी कि तुम्हें अल्लाह पत्थर के साथ पत्थर बना दें ताकि परी और शहजादे दोनों की जान बच जाए। देव जो था वहीं पे पत्थर बन गया और परी भी और शहजादा भी किसी गार के अंदर छुपे रहे। बाद में जो जिन उनके कब्जे में थे उन जिन्होंने परी को और शहजादे को बताया कि आज तो देव जो था वो ख़त्म हो चुका, अपने मुल्क में जो वापस जा सकते। उन जिन्होंने परी को और शहजादे को गार में से दोनों को निकाल कर लेकर मिस्र को पहुँचाए। इसके नाम की वजह थी झील का नाम जो था ये मशहूर हुआ, इसकी तारीफ बनी। उसके बाद यहाँ लोग आनी शुरू। This is the cave where the prince and the fairy took shelter from the giant. Safed Dio looks grand though. Surprisingly, as I enter this cave, it expands itself. कुछ तो बात है इस जगह की। हैरानी इस बात की होती है कि how this cave is still so well preserved. आज ये भी देख लिया। Outstanding.